Madam? Yeah. Okay, perfect. Let's get started, guys. Let's get this chapter done. And focus has to be to ensure that we are finishing at least half of the chapter in this reading. It's a very easy chapter. And let's just try to be focused and get the logic of it. Let's start on the first block. We have multiple blocks in this. Starting off with the first block here. What do we really understand? That first of all, who are shareholders? Yeah, shareholders are owners. Basically, they provide money and they own the company. Next, who are board of directors? These guys run the business. Shareholders own it. Managers, board of directors, managers, they are professionals who run it. Okay, shareholders own it. Managers run it. Yeah, okay. Shareholders own it, managers run it. That's done. Next, if they are separate, if ownership and management is separate, there is a benefit. Okay, shareholders, I'll just keep going with the slide as well. So the ownership and management, shareholders own it, management run it. Yeah, okay. What is the benefit? Right? Benefit of the separation. Owner is separate, manager is separate. What is the benefit? First of all, managers know strategy better. Managers know to run better. So it's better to management only to run it. Next, company can get money from outside investors, not just owners. So if you're it's separate, and if you're a listed company, you can get money from not only the owners but other people also. Right? We have more access to capital. And second, that owners focus on returns, managers focus on running the business. Right? So again, the owners focus on investment return and managers focus on running the business efficiently. Both will have a different focus, and overall the business will thrive. Okay. Let's look into quickly the benefits here, Ranveer. What are three benefits अगर हम owner और manager को separate रखे तो? One of the benefits is you can specialize in the expertise that they have, and there's access to capital as the investors provide funds, and the business can grow without the managers putting their own money. And there's also focus on accountability because owners focus on the returns and managers focus on Running the business. Okay, that is the first block, guys. Done. That owners अलग होते हैं, managers अलग होते हैं, और तीन benefit देख लिए कि अगर हम ये लोग तो तीनों को अलग सॉरी दोनों को अलग रखे, ओनर और मैनेजर को अलग अलग रखे, तो हमारे क्या फायदे हैं उसके? ठीक है, ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैनेजर को अपना पैसा नहीं डालना पड़ेगा, ओनर डाल देगा। दूसरा, मैनेजर के पास जो स्पेशलिस्ट स्किल है बिजनेस चलाने की वो अच्छे से कर लेंगे। और सेकंड है फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। बिजनेस वाला ओनर जो है वो प्रॉफिट पे फोकस करेगा, मैनेजर बिजनेस चलाने पे फोकस करेगा। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट को अपन सेपरेट रखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग इट सेपरेट वर्सेस सम ऑफ द अपसाइड। इफ वी कीप इट सेपरेट देयर विल बी एन अपसाइड। सेकंड, नेक्स्ट आ जाता है एजेंसी प्रॉब्लम। Okay, next we have an agency problem. Now that's our second block. But what is agency problem? Agency problem क्या होता है? Managers जिनको ओनर के बेनिफिट के लिए एक्ट करना चाहिए, वो खुद के बेनिफिट के लिए एक्ट करने लग जाते हैं. Okay, it occurs when managers in their own interest act in their own interest rather than the shareholders interest. उनको एक्ट करना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए, पर वो एक्ट करने लग जाते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए. प्रिंसिपल है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो मैनेजर है वो है अपना एजेंट. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एजेंट शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, बट ही स्टार्ट्स एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ. दैट इज द प्रॉब्लम. So the small companies में agency problem is minimal. Okay. 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 Next, we look into the small companies. The agency problem is minimal because owners and managers are usually the same person. अगर छोटे से बिजनेस में आप देखोगे ओनर एंड मैनेजर सेम ही इंसान है. Right? The one who's small bakery, small restaurant, owner and manager, he sits there only. Owner and manager is the same person. And when owner and manager is pretty much the same person, there's not much of a problem there. There's not much of an agency problem there. Okay, there's not much of an agency problem there. When owner and manager are the same people, there is not much of an agency problem there. Okay, so we understood principal, agent, conflict, small companies and the definition. Okay, let's quickly look into this here, Bhavya. क्या प्रॉब्लम होती है? अभी एजेंसी प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ? हम्म. हम्म. ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम. और छोटे कंपनियों का क्या सिचुएशन होता है? इनमें प्रॉब्लम होती है ये एजेंसी प्रॉब्लम या नहीं होती है? नहीं होती है इसमें, क्यों? क्योंकि ओनर और मैनेजर प्रीटी मच सेम लोग ही होते हैं.
ठीक है, क्योंकि प्रीटी मच ओनर और मैनेजर सेम लोग ही होते हैं, इसलिए छोटे कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े कंपनीज में देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। नेक्स्ट लेट्स लुक इनटू यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, जो प्रॉब्लम एजेंसी प्रॉब्लम की थी उसका सोल्यूशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ओके, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इट्स द सोल्यूशन फॉर एजेंसी प्रॉब्लम। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इज द सोल्यूशन फॉर एजेंसी प्रॉब्लम। नाउ first of all, we'll understand what is definition given by a report. What is the definition of corporate governance? Corporate governance is basically the system by which a company is directed and controlled. एक सिस्टम बना दिया होता है कि ऐसे आपको कंपनी चलानी है, आप चला रहे हो, पर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक सिस्टम बना के दे देते हैं, इस तरह आपको चलानी है, ताकि वो लोग अपना ज्यादा मिसयूज नहीं करे पावर का, एक सिस्टम बना के दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको चलाना है, हम नहीं चला पाएंगे कि हमको और दूसरा काम है, पर हम आपको एक सिस्टम दे देंगे, उस सिस्टम के हिसाब से आप चलाओ हमारी कंपनीज को। ठीक है, हम आपको एक सिस्टम दे देंगे, उस सिस्टम के हिसाब से आप चलाओ हमारी कंपनीज को। ठीक है, हम नहीं चला पाएंगे, हमको और काम है, हमको दूसरे वेज में और पैसे बनाने हैं, इसको आप चलाओ, इसको आप देखो, एक सिस्टम दे देंगे आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वैसे आप कंपनी को चलाओ। इट्स अ सिस्टम बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। तो उनके पास कितना ही टाइम, कितना ही वो लोग कंपनी को चलाए, पर एक सिस्टम दिया हुआ है पहले ही, तो फिर वो अपनी ज्यादा अपनी कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पहले सिस्टम दिया हुआ है। भले ही ओनर अब नहीं चलाता है कंपनी को, वो एक सिस्टम दे के चले गया। तो जो लोग मैनेजर लोग चलाते भी हैं, बोले कि सिस्टम के हिसाब से चलाते हैं, और सिस्टम ओनर ने दिया हुआ है, तो अब वो सिस्टम के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, राइट? What is the definition of corporate governance? It's a system by which companies are directed and companies are controlled. That system is called as corporate governance. Next definition. What is the definition of corporate governance? The definition is it's a framework of relationships between the management, the board, the shareholders, the stakeholders to achieve objective and monitor performance. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अगर एक स्पेसिफिक प्रॉपर डेफिनेशन देखें हम लोग, तो इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, द बोर्ड, द शेयर होल्डर एंड द स्टेक होल्डर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस। ओके, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, पर्पस क्या है मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्या है? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्या? क्योंकि अगर आपकी कंपनी कोई और चला रहा है और आप उनको एक सिस्टम दे दो, तो वो सिस्टम के अनुसार आपकी कंपनी चलाएंगे, तो आप वहां ना होते हुए भी आपका सिस्टम वहां रह जाएगा। आप भले ही ना हो, पर आपका सिस्टम वहां रह जाएगा कि उस सिस्टम से सारी चीजें करानी है। ठीक है, तो वो फायदा होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि आप ही देख लो कि कोई भी बड़ा बिजनेस होता है, उसको एक आदमी नहीं चला पाता है, उसको दूसरों को लाना ही पड़ता है वो काम करने के लिए। और जब वो दूसरों को लेके आता है, तो फिर दूसरे वैसे नहीं करते जैसे वो करेगा, तो वो क्या करता है, एक सिस्टम बना के चले जाता है, तो आपको करना ऐसे है इसको। और आप जब सिस्टम छोड़ दो, तो आप नहीं भी हो तो भी होंगे वहां पे, चीजें अच्छे से होंगी। कितने रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे, जो ओनर है उन्होंने क्या किया, मल्टीपल रेस्टोरेंट शुरू कर दिए। ठीक है, ओनर्स ने क्या किया है, मल्टीपल रेस्टोरेंट शुरू कर दिया ओनर्स ने। ठीक है, तो अब वो हर जगह हर रेस्टोरेंट में हर समय तो हो नहीं सकते, वो लोग हर रेस्टोरेंट में हर समय तो हो नहीं सकते। ठीक है, वो लोग हर रेस्टोरेंट में हर समय तो हो नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हर रेस्टोरेंट में अपना एक सिस्टम बना देते हैं, सिस्टम के अनुसार सारा काम होता है, तो वो ना होते हुए भी वो सिस्टम से अपने सारी चीजों को ट्रैक कर पाते हैं। So that is about corporate governance, the system by which a company should be directed and controlled. Okay, that is corporate governance. Now we look into the best practices. What are the best practices in corporate governance? That's our next block. सबसे पहले बोर्ड कॉम्पोजिशन, जो बोर्ड है उसमें एक मिक्स होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का भी नॉन एग्जीक्यूटिव का। देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव आर पीपल हु, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लोग वो हैं, द एग्जीक्यूटिव आर दोस पीपल हु एक्चुअली रन, जिनको कंपनी में डे टू डे का काम होता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लोग। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका कोई काम नहीं है, वो लोग को सिर्फ क्या करना है, बोर्ड पे आना है, बैठना है, और जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करना है या उनको प्रेस करना है। उनका खाली ये काम होता है नॉन एग्जीक्यूटिव का, कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं उनके बारे में एक क्रिटिकली एनालिसिस करके देना कि आप ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। जैसे क्रिकेट में कमेंटेटर्स होते हैं, कमेंटेटर्स ना खेलते हैं, ना कोई वो टीम का हिस्सा होता है, वो बस एसी ऑफिस में बैठ के माइक लेते हैं और बोलते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, इसने ये अच्छा किया, उसने वो अच्छा किया। करेक्ट, जो गेम में हो रहा है उसका एक्सपीरियंस नरेट करते हैं। तो उतना ही काम होता है कमेंटेटर्स का, वो क्रिकेट के मैच का एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं। ठीक है, वो क्रिकेट के मैच का एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं, वो होता है कमेंटेटर्स का काम। ठीक है, वो क्रिकेट के मैच का एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ अ कमेंटेटर। ठीक है, क्रिकेट के मैच का एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं, तो दैट इज द जॉब ऑफ अ कमेंटेटर।
सिमिलरली यही एनईडीज क्या करते हैं, ये लोग कोई काम भी नहीं करते कंपनी में, वो डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं। ये लोग को बस इनके घंटों के लिए पैसे दिया जाता है कि आप हफ्ते में हमको 10 आवर्स दो, हम उसका आपका 10,000 दे देंगे आपको। तो वो आते हैं बस, और जो जो काम हुआ है हफ्ते में उसको देखते हैं, समझते हैं और बोलते हैं आप ऐसे कर सकते थे, आप वैसे कर सकते थे। तो ये लोग होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है चीज का, और फिर वो बताते हैं, है ना, कि आप ऐसे भी कर लो, आप वैसे भी कर लो। सो व्हाट इज अ बोर्ड कॉम्पोजिशन? इट्स अ बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Director remuneration. What is director remuneration? Director executive pay should be determined by independent committees. जो डायरेक्टर को कितना पैसा मिलेगा वो एनईडी डिसाइड करते हैं। ईडीज का जो पैसा होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो पैसा होगा, वो एनईडी डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर ईडी अपना पैसा खुद डिसाइड किया, वो तो खुद को करोड़पति बना देगा एक साल में ही, है ना। ईडीज खुद का पैसा कभी डिसाइड नहीं करते, उनका पैसा एनईडीज डिसाइड करती है। एक रेम्यूनरेशन नाम की कमिटी होती है, रेम्यूनरेशन कमिटी, वो कमिटी डिसाइड करती है कि इन लोगों को कितना पैसा मिलेगा। So the executive pay should be determined transparently by independent NED, independent committees. The committees are the ones who determine the pay for the EDs. Next, audit. Internal and external audit ensures accuracy, effective controls and fraud prevention. तो कंपनी का इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए, और एक इंटरनल ऑडिट टीम भी होनी चाहिए, और एक एक्सटर्नल ऑडिट का काम भी होना चाहिए कंपनी में, कि ऑडिटर्स आते हैं और वो पूरी कंपनी को ऑडिट करते हैं। कुछ ऑडिटर्स होते हैं जो कंपनी ने हायर किए रहते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स। कुछ ऑडिटर्स होते हैं जो कंपनी बाहर कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाती है, जो आप डेलॉइट और केपीएमजी और ईवाई में लोग जो काम करते हैं, तो वो लोग दूसरे कंपनीज में जाके उनका ऑडिट कर देते हैं बस। So internal and external auditors, they ensure financial accuracy, effective controls, and fraud prevention. Okay. They internal and external auditors, they ensure financial accuracy, effective controls, and fraud prevention. Okay. They internal and external auditors ensure financial accuracy, effective controls, and fraud prevention. That is audit. Next, public oversight. Companies should disclose government information through reports and regulatory filings. Okay, companies को क्या करना चाहिए? They should disclose governance information. What should companies do? They should disclose governance information through reports and regulatory filings. What companies should do? They should disclose governance information. Okay, what should companies do? They should disclose governance information through reports and regulatory filings. Okay, what should companies do? They should disclose governance information through reports and regulatory filings. ओके, तो दिस इज व्हाट कंपनीज टू डू। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होता है कि सबसे पहले आप अपने ऑडिट करवाओ कंपनी का, इंटरनल ऑडिट टीम होनी चाहिए आपकी, एक्सटर्नल ऑडिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव नहीं एनईडीज डिसाइड करेंगे। बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट्स अ बैलेंस ऑफ ईडीज एंड एनईडीज। पब्लिक ओवरसाइट क्या होता है? कंपनीज टू डिस्क्लोज गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स एंड फाइलिंग्स। कंपनीज को क्या करना चाहिए? गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे करेंगे थ्रू रेगुलेटरी रिपोर्ट्स एंड फाइलिंग्स। फाइलिंग्स और रिपोर्ट्स है ये, दे शुड डिस्क्लोज द गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन। गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन को इनको रिपोर्ट्स और फाइलिंग्स के थ्रू इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नेंस से रिलेटेड, वो रिपोर्ट्स और फाइलिंग के थ्रू ये रिलीज करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, ताकि सबको पता चले क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था एनईडीज होते कौन है, मैं बोला ये जैसे मैंने बताया कमेंटेटर्स होते हैं क्रिकेट में, कोई टीम में नहीं होते, ना कि ये खेलते भी हैं। ये बस आके क्रिटिसाइज करते हैं या प्रेस करते हैं कि जो भी खेल रहे हैं उनको। सेम थिंग हुआ एनईडीज। एनईडीज आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स हु डू नॉट मैनेज डे टू डे, दे डू नॉट मैनेज डे टू डे। वो क्या करते हैं? चैलेंज और कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी में, और वो जो भी मॉनिटर एग्जीक्यूटिव्स का परफॉर्मेंस होता है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और उनमें इम्प्रोवाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं। रिस्क, इट इंश्योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये क्या इंश्योर करते हैं? कि रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव है और इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, ये इंश्योर करते हैं। फाइनली, पीपल, दे डिसाइड एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन एंड दे ओवरसी अपॉइंटमेंट्स एंड सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? दे डिसाइड कि कितना पैसा मिलेगा एग्जीक्यूटिव वालों को, और कौन बोर्ड में आएगा, और अभी कोई अगर रिटायर कर रहा है या कोई छोड़ रहा है तो नेक्स्ट कौन आएगा। इनका ये मेन काम रहता है। दे डिसाइड एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, दे ओवरसी एनी अपॉइंटमेंट्स एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो सबसे पहले रोल देख लिया, इनका मेन काम क्या होता है? डे टू डे तो काम करते नहीं है, क्या करते हैं पर ये लोग? चैलेंज और कंट्रीब्यूट टू कंपनी स्ट्रेटेजी। कंपनी की स्ट्रेटेजी की तरफ ये लोग चैलेंज और कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। ये मॉनिटर करते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ऑल्सो ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल है वो सही से चल रहा है। तो ये बस बाहर के लोग हैं जो आते हैं और इंश्योर करते हैं कंपनी का ध्यान रख रहे हैं। लोग गार्जियन हो गए कंपनी के इन अ वे, इनको अपने समय के लिए पैसा मिलता है, लोग कोई काम नहीं करते हैं, ये बस बाहर से आते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बस इनका वो काम रहता है। ये कंपनी के एम्प्लॉय भी नहीं होते, इनको बस अपने टाइम के लिए एक पैसे मिल जाते हैं, और ये अपना टाइम देते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। ना कोई काम है कंपनी का इनको करने के लिए, ना इनको कोई भी रोल दिया जाता है, कुछ नहीं है। इनका काम बस ये है कि जो कर रहे हैं क्या वो सही से कर रहे हैं, आप आके देखो खाली।
क्योंकि जब ये लोग देखेंगे तो, और इनका कोई भी लगाव नहीं है कंपनी से, ये लोग बाहर के लोग हैं, तो ये लोग बताएंगे ये अच्छे से नहीं हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ये सही से हो रहा है, वो सही से नहीं हो रहा है। तो दैट इज अबाउट दिस। एंड पीपल दे डिसाइड, और ये लोग पैसे भी डिसाइड करते हैं कि इसको कितने पैसे मिलेंगे, वो लोग भी यही डिसाइड, वो चीज़ भी यही लोग डिसाइड करते हैं। तो ये होते हैं एनईडीज, ये बस कमेंटेटर्स इन क्रिकेट, बस वैसे याद रख लो। ना खेलते हैं ना कोई टीम के होते हैं, बस आते हैं अपना टाइम देते हैं, पैसे लेते हैं और बस बातें करते हैं। ये लोग बस अपना नॉलेज शेयर करते हैं, खाली अपने थॉट शेयर करते हैं कि क्या चल रहा है कंपनी में, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस पहली चीज। दूसरी, पैसे डिसाइड करते हैं, अपॉइंटमेंट्स और सक्सेशन प्लानिंग। तो दिस इज योर एनईडीज, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एनईडी इंडिपेंडेंस। तो एनईडी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो एनईडी वो लोग होते हैं जिनको कंपनी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए इनको कंपनी से, तभी ये एक अच्छा काम कर पाएंगे। अगर इनको थोड़ा सा भी कंपनी से ज्यादा पैसा मिलता है, प्रॉफिट रिलेटेड बोनस मिलता है, या कुछ भी परफॉर्मेंस रिलेटेड मिलता है, तो ये लोग भी बायस हो जाएंगे फिर। और इनमें और एग्जीक्यूटिव में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। एग्जीक्यूटिव को भी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, तो वो लोग चीटिंग करते हैं। अब इनको भी मिलने लगा तो ये भी चीटिंग करने लग जाएंगे। तो इनको एकदम इंडिपेंडेंट रखा जाता है, इनको बस इनके टाइम के लिए पैसा देता है। कंपनी 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए, 10,000 करोड़ कमाए, इनको उतना ही पैसा मिलने वाला है। इनको परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको परफॉर्मेंस के कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो ये लोग को बस अपना टाइम देते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स देना होता है इनको, उतने एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स ये देते हैं बस। So NED independence, first is recent employee. They should not have been an employee within the last 5 years. सबसे पहले हो गया कि they should not have been an employee in the last 5 years. तो लास्ट 5 साल में ये उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आज कोई एम्प्लॉय एक कंपनी का अगले 5 साल तक वो इस कंपनी का एनईडी नहीं बन सकता। 5 साल बाद भले ही वो इस कंपनी का एनईडी बन जाए, 5 साल तक वो एनईडी नहीं बन सकता कंपनी का। नेक्स्ट, बिजनेस इंटरेस्ट। दे शुड नॉट हैव एनी मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप इन द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल में इसका कुछ भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, इसकी कंपनी का या इसका खुद का कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लोज पर्सनल टाइज। दे शुड नॉट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर्स और द सीनियर मैनेजमेंट। ना डायरेक्टर के साथ ना सीनियर मैनेजमेंट के साथ, किसी के साथ भी क्लोज पर्सनल टाइज नहीं होने चाहिए। इसके किसी के साथ भी क्लोज पर्सनल टाइज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, शेयर स्कीम्स। दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनी शेयर ऑप्शंस और पेंशन स्कीम्स दैट इम्पेयर इंडिपेंडेंस। इनको क्या करना चाहिए? दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनी शेयर ऑप्शंस और द पेंशन स्कीम्स दैट इम्पेयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कंपनी का शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनी शेयर ऑप्शंस और पेंशन स्कीम्स, कंपनी के शेयर ऑप्शन में या पेंशन स्कीम्स में, कंपनी के शेयर ऑप्शंस में या कंपनी के पेंशन स्कीम्स में। ओके, कंपनी के शेयर ऑप्शंस में या फिर पेंशन स्कीम्स में। ओके, शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपनी शेयर ऑप्शंस और द पेंशन स्कीम्स। ओके, ना कंपनी के शेयर ऑप्शंस में ना कंपनी के पेंशन स्कीम में, इनका कुछ भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉन्ग टेन्योर। सर्विंग एज एन एनईडी फॉर मोर देन 9 years में रिड्यूस इंडिपेंडेंस। तो 9 साल से ज्यादा ये लोग एनईडी भी नहीं हो सकते। 9 साल जैसे ही हुए हमको इनको मूव करना पड़ेगा। Board explanation. If an entity is still considered independent despite these factors, the board will have to explain the shareholders. अगर ये सारी चीजों में कोई भी कारण से वो नहीं मैच कर रहा है और फिर भी आप उसको एज ए एनईडी रखे हो, तो फिर ये डिसीजन आपको समझाना पड़ेगा सबको। तो फिर अभी को ये डिसीजन तो सबको भाई समझाना पड़ेगा कि ये सब नहीं मीट कर रहा है, फिर भी हम लोग इसको क्यों रखे हुए हैं। ये कुछ भी मीट नहीं कर रहा है, तब भी हम इस लोग इसको क्यों रखे हुए हैं। इसका कुछ नहीं बनता है इधर, ये डिस्क्वालिफाइड है, बट फिर भी आप इसको एनईडी बना के रखे हो क्यों? दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो वो हो गया अपना एनईडी के बारे में 2 पेज। ठीक है, ये हो गया अपना एनईडी। तो रिसेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बिजनेस इंटरेस्ट नहीं, शेयर प्लान नहीं होना चाहिए, क्लोज टाई नहीं होती है, और कंपनी के साथ 5 साल से बाद ही एनईडी बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अपना चेयरमैन, बस नहीं, यस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फर्स्टली इंडिपेंडेंट एनईडीज। बोर्ड जो होता है उसमें 50% ऑफ द बोर्ड शुड बी एनईडीज। बोर्ड का जो 50% है वो एनईडीज होते हैं। बोर्ड के जो 50% लोग हैं वो एनईडीज होने चाहिए। बोर्ड के जो 50% लोग हैं वो एनईडीज होने चाहिए। ओके, बोर्ड के 50% लोग एनईडीज होने चाहिए। ओके, बोर्ड के 50% लोग एनईडीज होने चाहिए। ओके, बोर्ड के जो 50% लोग होते हैं वो एनईडीज होने चाहिए, पहली चीज। बोर्ड के 50% लोग एनईडीज होने चाहिए, 50% एनईडीज, 50% ईडीज, तभी बोर्ड बनेगा। नेक्स्ट, स्मॉलर कंपनीज में एटलीस्ट 2 एनईडी होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी छोटी है तो अगर 2 इंडिपेंडेंट एनईडी होनी चाहिए। री इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एनईडी मस्ट स्टैंड फॉर री इलेक्शन एवरी 3 years।
तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और एनईडीज है, दे मस्ट स्टैंड फॉर री इलेक्शन एवरी 3 years। हर 3 साल में इनको री इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो भी एग्जीक्यूटिव एनईडी है और एनईडीज है, उनको हर 3 साल में इलेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एवरी 3 years में इनका री इलेक्शन होगा। राइट, एवरी 3 years में इनका री इलेक्शन होगा। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द एनईडीज मस्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन एवरी 3 years। हर 3 साल में इनका री इलेक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव और एनईडीज का। नेक्स्ट, लॉन्ग टेन्योर। ठीक है, एनईडी सर्व मोर देन 9 years मस्ट स्टैंड फॉर एनुअल री इलेक्शन। अगर कोई भी 9 साल से ज्यादा हो गया, मस्ट स्टैंड फॉर एन एनुअल री इलेक्शन, तो फिर इनका री इलेक्शन होगा। नेक्स्ट, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वन इंडिपेंडेंट एनईडी शुड एक्ट एज सीनियर टू एड्रेस द शेयर होल्डर कंसर्न। तो इनके बीच में इनको एक अपना स्पोक्स पर्सन रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक सीनियर का नाम दे देते हैं खाली। ठीक है, कि ये सीनियर है हमें, तो भाई इससे बात कर लो, कि ही विल रिप्रेजेंट ऑल द एंड। तो एक सीनियर आदमी को जो अच्छे से बात करता है, तो इसको ये लोग अपने आप में सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जाके बात करेगा सबसे। ये बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये बोर्ड के बिहाफ पे बात करेगा। जो प्रीफेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स में से ही एक बन जाता है, उनको प्रीफेक्ट बना देता है। ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स में ही बन जाएगा। तो वो होता है ये, वन एंड शुड एक्ट एज द सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एड्रेस द शेयर होल्डर्स कंसर्न्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया इंडिपेंडेंट एनईडीज। एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट एनईडीज। ठीक है, स्मॉल कंपनी, स्मॉल लिस्टेड कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एनईडीज। री इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनईडीज मस्ट स्टैंड फॉर री इलेक्शन। हर 3 साल में री इलेक्शन होगा। लॉन्ग टेन्योर, एनईडीज सर्विंग मोर देन 9 years must stand for an annual re-election. And next, senior independent directors, one independent NED should act as a senior independent NED। उन सब में से एक जो है वो सीनियर होगा। ठीक है, उन सब में जो एक है वो सीनियर होगा। ठीक है, इन सब में जो एक है वो सीनियर होगा। वो ही सबसे जाके बात करेगा और सारी चीजें करेगा। 50% एनईडीज, छोटे कंपनी में 2 होने चाहिए। रेगुलरली री इलेक्शन होना चाहिए उनका। लॉन्ग लॉन्ग टेन्योर के जो एनईडीज होते हैं 9 साल से ज्यादा, उनका भी री इलेक्शन होगा। और इनमें से अपने आप में वो एक लीडर चुन लेते हो, लीडर ही जाके बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन सीईओ। चेयरमैन होता है वो कंपनी का हेड होता है। सॉरी, सीईओ जो होता है वो कंपनी का हेड होता है। चेयरमैन होता है वो बोर्ड का हेड होता है। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका कैप्टन है, उसको सीईओ बोलते हैं। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनका जो कैप्टन है उसको चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कैप्टन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो कैप्टन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव का कप्तान होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनईडी, उसको बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, वो एनईडी का कैप्टन होता है। और जो सीईओ होता है वो ईडीज का कैप्टन होता है। दैट इज सेपरेशन ऑफ रूल्स। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन कमेटी। अब रेम्यूनरेशन कमेटी की क्या बात होती है, अब ये वो कमेटी है जो सबके पैसे डिसाइड करती है, किसको कितना पैसा मिलेगा। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या है, सबके पैसे डिसाइड करती है। ठीक है, रेम्यूनरेशन कमेटी का क्या काम होता है, सबके पैसे डिसाइड करती है। इट सेट द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। देखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप खुद बोल दो कि अपना पैसा डिसाइड कर, तो खुद को करोड़पति बना देगा एक ही साल में। ठीक है, तो इसीलिए ये कमिटी बनाते हैं, इस कमिटी में सिर्फ एनईडीज होते हैं। ठीक है, और ये वाली जो कमिटी होती है ये डिसाइड करती है कि कौन कितना कमाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन, लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 3 एनईडीज होने चाहिए। ठीक है, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनमें एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट एनईडीज होने चाहिए। और जो स्मॉल कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 एनईडीज होने चाहिए, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। पर रेम्यूनरेशन ऑफ एनईडीज इज डिटरमाइंड बाय द फुल बोर्ड। बट अब एनईडीज को कितना पैसा मिलेगा ये पूरा बोर्ड डिसाइड करता है। कि आप खुद वो एनईडीज को कितना पे करोगे, ये बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो एनईडीज को आप कितना पे करोगे ये बोर्ड डिसाइड करता है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। इट प्रिवेंट सेल्फ सर्विंग एग्जीक्यूटिव्स। ये ऑब्वियसली अब एग्जीक्यूटिव्स को अपना खुद मान लो दे दो पेमेंट डिसाइड करना, वो तो बहुत पैसा दे देगा खुद को। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ रिसीवेबल फेवर एंड एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो एनईडीज को हायर करो तो उनका हायरिंग अलग से ये अपना एक खर्चा हो गया कंपनी के लिए। और रिस्क ऑफ रेसिप्रोकल फेवर, है ना, ये ऐसा रहेगा कि आप मेरी मदद करो, हम आगे जाके आप कोई चीज में आपकी मदद कर देंगे। है ना, ये बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव बोलेगा कि आप इस बार में हमारी मदद कर दो, जब आपके पैसे आएंगे हम आपके पैसे बढ़ा देंगे। है ना, क्योंकि बोर्ड का जो डिसीजन होता है
जो एनईडीज को कितना पैसा मिलेगा वो बोर्ड डिसाइड करती है। बोर्ड में ईडीज भी होते हैं, तो ईडीज बोलते हैं कि आप हमारा पैसा बढ़ा दो, हम आप लोग का पैसा बढ़ा देंगे। सब लोग खाते पीते हैं, पैसे तो वैसे भी शेयर होल्डर के हैं, हमारे तो है नहीं, है ना, हम लोग अपने घर लेके जाते हैं अच्छे से। तो एनईडीज को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव वाले कि आप हमारा पैसा बढ़ा दो, एग्जीक्यूटिव वाले एनईडी को बोलते हैं कि आप हमारा बढ़ा दो, एनईडी को हम आपका बढ़ा देंगे। इट विल बी लाइक इट्स कॉल्ड एज यू स्क्रैच माय बैक, रिस्क ऑफ रेसिप्रोकल फेवर, दोनों एक दूसरे को फेवर करने लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ये रेम्यूनरेशन कमेटी। एक ऐसी कमेटी होती है जो सबके पैसे डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पैसे डिसाइड करती है, और इनके पैसे भी पूरा बोर्ड डिसाइड करता है। इसका फायदा भी ये है कि बोर्ड बाकी चीजों पे डिसाइड कर सकता है, ये लोग ये सारा काम ये लोग देख लेंगे, ताकि बोर्ड अपने इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करे। और डिसएडवांटेज ये है कि ये लोग फिर एनईडीज एईडीज का सपोर्ट करेंगे, एईडीज एनईडीज का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट चलता रहेगा, तो वो डिसएडवांटेज है। एक दूसरे का सपोर्ट चलता रहेगा तो वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो दैट इज द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की क्या बात है? ऑडिट कमेटी क्या करता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी मॉनिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये ऑडिट कमेटी क्या देखता है? इट मॉनिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट मॉनिटर्स इंटरनल कंट्रोल्स, इट मॉनिटर्स रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिटर इंडिपेंडेंस। तो ये जो ऑडिट कमेटी है ये सारी चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या देखते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स, क्या देखते हैं? रिस्क मैनेजमेंट, क्या देखते हैं? ऑडिटर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सारी चीजें देखती है ऑडिट कमेटी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखती है, इंटरनल कंट्रोल देखती है, रिस्क मैनेजमेंट देखती है, ऑडिटर इंडिपेंडेंस देखती है। तो ये सारी चीजें ऑडिट कमेटी देखती है। इट मॉनिटर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, it looks into internal controls, it looks into risk management, and it also looks into auditor independence. It monitors financial reporting, monitors internal controls, monitors risk management, and monitors auditor independence. ये सारी चीजें ऑडिट कमेटी देखती है। ये सारी चीजें ऑडिट कमेटी देखती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट रिव्यूज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पब्लिकेशन। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करती है? सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करती है पब्लिकेशन के पहले। सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करती है बिफोर पब्लिकेशन। ये ऑडिट कमेटी का काम होता है। ठीक है, ऑडिट कमेटी होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी क्या रहती है? ये इंश्योर करती है कि सारे इंटरनल ऑडिटर्स, सारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स, सारा इंटरनल कंट्रोल्स और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ढंग से बन रहा है, सारा इंटरनल ऑडिट अच्छे से हो रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर अच्छे से काम कर रहा है अपना, वो लोग इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना ढंग से बन रहा है, और इंटरनल कंट्रोल्स है वो सब सही से चल रहे हैं। ये सारा काम ऑडिट कंपनी का है, ऑडिट कमेटी का है। कि क्या बोले, सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर्स इनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये पावर देती है, ये अथॉरिटी देती है इंटरनल ऑडिटर्स को। सेकंड, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इंश्योर करती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट है। ये इंश्योर करती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट। ये इंश्योर करती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट हो। ये वो इंश्योर करती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट है। सेकंड, ये इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बन रहा है, सारे पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स ढंग से अब अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहे हैं। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस है सही से। तो ये काम है ऑडिट कमेटी का। इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों को देखता है ऑडिट कमेटी। ठीक है, सबके अपने, हर कमेटी के अपने काम है। बोर्ड में जैसे 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, वैसे बोर्ड में भी बहुत सारे कमिटीज होती हैं। एक कमेटी देख ले, रेम्यूनरेशन कमेटी, ये सबका पैसा डिसाइड करती है। ऑडिट कमेटी ये देखती है कि सारा ऑडिट हो रहा है कि नहीं अच्छे से। नेक्स्ट है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी ये देखती है कि बोर्ड का साइज क्या है, क्या सही टैलेंट है क्या बोर्ड में, सारी स्किल्स है क्या बोर्ड में, नए लोगों को लाना है क्या बोर्ड में, अगर कोई छोड़ रहा है तो नया इंसान किसको लेके आएंगे हम लोग, और बोर्ड में अलग अलग तरह के लोग हैं क्या, मेल भी है फीमेल भी है, सारी तरह के लोग हैं क्या, एक फाइनेंस, एक बंदे को फाइनेंस आना चाहिए वो भी है क्या। तो ये सारी चीजें बोर्ड में होनी चाहिए। तो इसका ख्याल नॉमिनेशन कमेटी रखती है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो गया कोई इवेंट का, तो ये सारे ऑर्गेनाइज करती है अच्छे से कि अच्छा बैलेंस है क्या, ठीक है, बोर्ड का साइज सही है क्या, सारे स्किल्स है क्या। तो ये सारा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है कि इवेंट का, वो नॉमिनेशन कमेटी, ये बोर्ड का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। ये जो बोर्ड है उसका ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बस मेक श्योर करता है कि सारी चीजें सही है कि नहीं बोर्ड में। बोर्ड के जो रोल फंक्शंस है वो बाकी कमिटीज करती है, पर ये इंश्योर करती है कि बोर्ड सही है क्या। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक ओवरसाइट।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पब्लिक ओवरसाइट तो कंपनी डिस्क्लोज गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज सब एनुअल रिपोर्ट में कंपनी बता देती है कि हमारी ये कमिटीज है, इन्होंने ये काम किया और हम ऐसे ऐसे इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में पता चल जाती है। ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में पता लग जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको एनुअल रिपोर्ट में पता चल जाती है। कंपनीज डिस्क्लोज द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कमिटी एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें हमको एनुअल रिपोर्ट में पता लग जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको एनुअल रिपोर्ट में पता लग जाती है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फाइलिंग्स। कंपनीज विल सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स टू रेगुलेटर्स। कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स रेगुलेटर्स को डिस्क्लोज करती है। कंपनी क्या करती है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और गवर्नेंस डिस्क्लोजर सबमिट कर देती है रेगुलेटर्स को। नेक्स्ट, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। इंडिपेंडेंट बॉडीज मॉनिटर गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड एनफोर्स रेगुलेशंस। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है वो क्या करती है, मॉनिटर करती है। क्या मॉनिटर करती है, गवर्नेंस को। क्या मॉनिटर करती है, एनफोर्स रेगुलेशंस को। इन सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो ये जो बोर्ड है पब्लिक ओवरसाइट, ये हम कंपनी को बताना होता है सबको कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कंपनीज को बताना होता है सबको हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम कमिटीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कमिटीज हमारे लिए क्या कर रही है, कमिटीज का क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें कमिटीज को बताना पड़ता है, कंपनी को बताना पड़ता है। तो कैसे बताती है कंपनी ये सारी चीजें, ये सारी चीजें कंपनी कैसे बताती है, वाया द एनुअल रिपोर्ट। ये सारी चीजें कंपनी कैसे बताती है, थ्रू द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें कंपनी कैसे बताती है, थ्रू द एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम रेगुलेटरी फाइलिंग्स। कंपनी सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर टू रेगुलेटर्स। कंपनी क्या करती है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स रेगुलेटर्स को सबमिट करती है कि भाई देखो ये हमने सारी चीजें सही से कर ली है। और एक होता है पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो मॉनिटर करती है कि सारा सब कुछ कंप्लायंट है कि नहीं, सरकार ने जो भी रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं कि उस हिसाब से सब कुछ कंप्लायंट है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया पब्लिक ओवरसाइट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप रखो, अच्छे से करो, तो क्या फायदा है। एक तो क्या होता है कि इन्वेस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई सब अच्छे से हो रहा है, कम से कम वेस्टेज होता है, वेस्टेज एकदम कम से कम हो जाता है। ये एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना टाइट रखना ही पड़ेगा। फिर है बिजनेस सक्सेस। इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। राइट, इट इम्प्रूव्स, ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है, कम से कम वेस्टेज होता है, और एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स रहती है। राइट, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इज ऑफन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड मेंटेन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। ठीक है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है, ये एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी है। मिनिमाइज करता है ये वेस्टेज को, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है, और बिजनेस सक्सेस में बड़ा मदद करता है। ये बिजनेस के सक्सेस और बिजनेस में उसमें बड़ी मदद करता है ये। बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हो गई सारी बोर्ड की कमिटीज। सारी कमिटीज को हमने इन अ ग्लांस देख लिया एंड की टेक अवेज है खाली। ठीक है, तो ये अपना आधा चैप्टर इधर हो गया है। तो एक बार क्या करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, तो काफी थियोरी अभी गई है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो मैं खत्म कर दूं आगे का, बट आई जस्ट फील कि एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। जो अपना सबसे पहले हमने क्या देखा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कि ओनरशिप अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। ओनर ओन करता है, मैनेजर चलाता है कंपनी को। इसके क्या फायदे होते हैं, इसका क्या फायदा है, इसका है कि देखो जो स्पेशलिस्ट है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो करने दो। मैनेजर चलाने में अच्छा है तो उसको चलाने दो, और शेयर होल्डर पैसे डालने में अच्छा है तो उनको पैसे डालने दो। और जो जिसकी एक्सपर्टीज है उसको वो काम मिले तो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। फिर आता है हमारा एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम इज कि ये एजेंट होते हैं, इनको प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना चाहिए, प्रिंसिपल के फायदे के लिए काम करना चाहिए। पर ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, ये लोग एजेंट के हिसाब से, सॉरी, ये लोग अपने खुद के लिए ही काम करने लग जाते हैं, और अपने खुद के फायदे के लिए काम करने लग जाते हैं। ये जो एजेंट होते हैं ये खुद के फायदे के लिए काम करने लग जाते हैं। ये लोग बोली जाते हैं कि हमारा एक माई बाप है, हमारा एक प्रिंसिपल है जिसके लिए हमको काम करना है, और उसके लिए ही हमारे उसके फायदे के लिए काम करना है। नहीं, ये लोग अपने फायदे के लिए काम करने लग जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कि आप क्या करो, आप मालिक हो, आप एक सिस्टम बना के चले जाओ, तो आपके जो भी इंप्लॉइज है वो सिस्टम को फॉलो करके अच्छे से काम कर लेंगे। आप नहीं भी हो पर आपका सिस्टम तो वहां रह सकता है ना। आप नहीं भी हो भले ही आपका सिस्टम रह सकता है वहां पे। ठीक है, आप नहीं भी हो आपका सिस्टम रह सकता है वहां पे। आप नहीं भी हो, आप अगर नहीं भी हो पर आपका सिस्टम वहां रह सकता है। ठीक है, आपके होने ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ना होते भी, ओके, आपके ना होते हुए भी
आपके ना होते हुए भी आपका सिस्टम वहां रह सकता है, तो वो होता है आपका एजेंसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा हिस्सा होता है एनईडीज। अब एनईडीज कौन होते हैं? एनईडीज वो लोग होते हैं जो मैंने बोला कॉमेंटेटर्स की तरह होता है। ना इनका कोई काम होता है बिजनेस में, ना इनका कोई जॉब होता है बिजनेस में। इनका एक ही चीज होता है। क्या होता है इनका? एक ही काम। इनका एक ही काम होता है। और क्या होता है इनका वो काम? इनका एक ही काम है। इनका एक ही काम है कि इनको बस जो एक्चुअल काम करते हैं एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, जो अपने ये होते हैं ईडीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनके काम को ये लोग को जज करना होता है। ईडीज के काम को ये लोग जज करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ईडीज के काम को जज करते हैं और बताते हैं कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। मेन वही है। फिर हमने देखा कि बोर्ड में क्या क्या होता है। बोर्ड में पहले तो एनईडीज होते हैं, और जो छोटी कंपनीज होती है उनमें कम से कम दो एनईडी होने चाहिए। एनईडी भाई कौन हुआ? इंडिपेंडेंट है, कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, इसका आता है, टाइम देता है, पैसा मिलता है इसको बस। इसको कंपनी में कोई जॉब नहीं है, कोई रोल नहीं है। जो लोग एक्चुअल काम करते हैं उनको ये उनका काम देखता है और समझता है कि कंपनी का डायरेक्शन कैसा है। री इलेक्शन होना चाहिए एनईडीज का हर 3 साल ज्यादा से ज्यादा। जो लॉन्ग स्टैंडिंग एनईडीज है 9 साल के बाद ये लोग कर ही नहीं सकते कंपनी में काम। सारे एनईडीज अपने आप में एक लीडर चुन लेते हैं, उसको बोलते हैं सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो इनको रिप्रेजेंट करता है हर जगह। चेयरमैन और सीईओ की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो एग्जीक्यूटिव का चेयरमैन होता है उसको सीईओ बोलते हैं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव का लीडर होता है उसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। सी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो लीडर है उसको बोलते हैं सीईओ, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर है उसको बोलते हैं चेयरमैन। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है? रेम्यूनरेशन कमेटी वो कमेटी होती है, ठीक है। रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है? ये वो कमेटी होती है जिसका एकमात्र काम ये है कि इंश्योर करना है कि सबका पेमेंट डिसाइड करना। एग्जीक्यूटिव वालों का। एग्जीक्यूटिव वालों को अपना पेमेंट खुद नहीं डिसाइड करना चाहिए, वे खुद को बहुत पैसे दे देंगे। तो ये काम रेम्यूनरेशन कमेटी करती है। ये एनओसी होती है ऑडिट कमेटी। इनका एक ही काम होता है कि इंटरनल ऑडिट वालों के साथ पावर देना, उन लोग को एक वजूद देना कंपनी में, कि लोग डोंट जस्ट पुश देम अराउंड। नॉन एग्जीक्यूटिव सॉरी जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है उनको इंडिपेंडेंट रखना, इंश्योर करना कि इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बन रहा है। ये सारा काम होता है इनका। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन कमेटी। इनका एकमात्र काम है कि बोर्ड को अंदर से देखना कि बोर्ड सही है कि नहीं, इनफ लोग है कि नहीं, बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स है कि नहीं, बहुत अलग अलग तरह के लोग है कि नहीं, और कोई दिक्कत हो रही है तो बोर्ड को काम करने में यह इशू करते हैं। एक बैलेंस होना चाहिए ईडीज एंड ईडीज का। और बोर्ड का ध्यान रखना, बेसिकली वो बोर्ड है, उस बोर्ड का ध्यान रखने को हम लोग नॉमिनेशन कमेटी बोलते हैं। कमेटी जो बोर्ड का ध्यान रखती है इसको बोलते हैं नॉमिनेशन कमेटी। एक कमेटी जो बोर्ड का ध्यान रखती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेशन कमेटी। एकमात्र कमेटी जो बोर्ड का ध्यान रखती है, ठीक है, कमेटी जो बोर्ड का ध्यान रखती है इसको अपन बोलते हैं नॉमिनेशन कमेटी। नेक्स्ट है पब्लिक ओवरसाइट, कि पब्लिक को बताते रहना कि हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या करता है? ये कंपनी को डिस्क्लोज करता है कि क्या चल रहा है वहां पे। और रेगुलेटरी फाइलिंग्स होनी चाहिए। कंपनीज शुड सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड। इंडिपेंडेंट बॉडीज शुड मॉनिटर द गवर्नेंस कंप्लायंस एंड एनफोर्स रेगुलेशंस। ये जो पब्लिक ओवरसाइट के जो बोर्ड्स है, पब्लिक ओवरसाइट की जो बोर्ड है, इन बोर्ड को क्या करना चाहिए? पब्लिक ओवरसाइट का जो बोर्ड है, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स है, ये जो पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड है इनको इंश्योर करना चाहिए। जो पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स है उनको इंश्योर करना चाहिए, पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स को इंश्योर करना चाहिए। क्या इंश्योर करना चाहिए? ये सारी चीजें सही से हो रही है कि नहीं। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो इंश्योर करता है कि गवर्नेंस कंप्लायंस एंड एनफोर्स द रेगुलेशंस। और एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को बताना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, सब एनुअल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने बताया था क्या होता है। ये वो सोल्यूशन है किसका? एजेंसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस तगड़ा है, कंपनी में अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो आपको इन्वेस्टर भी बहुत खुश रहेगा, आपका कंपनी में बहुत कम वेस्टेज होगा, एक लिस्टिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो, और आपकी बिजनेस की तरक्की होगी अगर आपके पास अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो। नेक्स्ट है रेम्यूनर ये बोर्ड कमिटीज। हमने देख ही लिया सारी कमिटीज को इंडिविजुअली। तो ये सारी हमारी कमिटीज होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ये सारी हमारी कमिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा की टेक अवेज थे कि सेपरेशन रहे तो अच्छा है, जो जिसमें अच्छा है उसको वो काम करने दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकमात्र सोल्यूशन है एजेंसी प्रॉब्लम का। एनईडीज होना बहुत जरूरी है, तभी कंपनी सही से चलेगी, नहीं तो सब एजेंट्स प्रिंसिपल का सारा जो मेहनत किया हुआ है, जो भी काम सेटअप किया हुआ है, सब खराब कर देंगे। और गवर्नेंस क्रिएट्स वैल्यू। अगर आपका गवर्नेंस अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर भी आपकी कंपनी से खुश रहेंगे, कंपनी में रिस्क कम रहेगा, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे। तो ओवरऑल गवर्नेंस होना कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 20 स्लाइड, और मैंने एक और बार रिवीजन भी करा दिया। अब मुझे लगता है और मैं थियोरी में जाऊं तो आप शायद सो जाओगे, अगर नहीं सोए हो तो अभी तक।
अभी अपन थोड़ा एग्जाम के सम देख लेते हैं अभी इसी चैप्टर पे। एटलीस्ट आप अपने आप को टेस्ट करोगे और देखो कि कितना आपको समझ आ पा रहा है। ओके लेट्स गो। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे।